We are going to discuss basics of clinical optics upon which you can build your presentations like slit lamp, ophthalmoscope and other things. It's a revision of the physics chapters on light in metric and FSC books. So if you can go back and go through those chapters of light, the understanding of ophthalmic optics will be quite easier for you. So the plan is that there will be a pre-test. We will just discuss, and then the optics. First, we will be just discussing the principles of optics and their clinical applications. Then, one by one, we will be going through the ophthalmic instruments, and in the end, we will have a post-test to see what concepts have been built during this process. It's a very long presentation, and we will do as much as we can do today, and then keep on adding. The objectives of the presentation are that the students should be able to know their learning needs and gains, understand clinical optics and ophthalmic significance, and they should be able to use ophthalmic instruments and perform eye examinations after going through this presentation using the instruments in a correct manner and knowing the background of optical principles involved behind the use of those instruments. And then put it all together to evaluate, diagnose, and investigate common ocular conditions. So here is the pre-test. Who is the volunteer? We start from Dr. Sambha. The focal length of lens is inversely proportional to the radius of the lens, directly proportional to the power in diopters, inversely proportional to the power in diopters, is not related to power or diopters. C, inversely proportional to power in diopters. So F is equal to 1 over D. This is the most important formula to remember in your refraction room and in whole of your ophthalmology career. You keep on using and applying this throughout. Average dioptric power of adult cornea is 52? 42 to 43. Average axial length of the normal delta is correct. So interview से आपकी तरबियत हो रही है. Clinical assessment of cataract progression is done through all of above. We check the visual acuity, we can watch the opacity with distant direct ophthalmoscopy, and we perform slit lamp examination. Perimeter is used to measure visual fields. असल में ये प्रेजेंटेशन अंडर ग्रेजुएट्स के लिए थी, इसलिए ये इतना बेसिक सवाल आपकी तौहीन तो नहीं होगी. Objectives of distant direct ophthalmoscopy is examination of media opacities. Distant direct ophthalmoscopy, which you perform from about 30 to 50 centimeters. You cannot examine retina. Always remember the difference. Some old style examiners may ask still, what's the difference between distant direct ophthalmoscopy and direct ophthalmoscopy? Direct ophthalmoscopy में objective है retinal examination, fundus examination, और distant direct ophthalmoscopy में objective है red reflex के against opacities, media opacities कैसी नजर आती हैं. The image formed during direct ophthalmoscopy is erect and virtual, option D. In the process of reflection,
angle of incidence is always equal, greater, lesser, equal to angle of reflection. Which law is this? Which one? First, second, third? First law of reflection. Most of the refraction occurs at the site of retina, cornea, lens, aqueous. Cornea. सेंटर में नॉर्मल डिस्क है, तो इर्द गिर्द पैथोलॉजीज हैं, आपने मैच करनी है। आप इसमें से हाइपरटेन ए के साथ कौन सा नंबर मैच कर रहा है? 10, 11, 12, 13 में से 13। और बी के साथ 12। डिस्क स्वेलिंग MCQ 12 है और ऑप्टिक एट्रोफी 11 और ग्लाइकोमेटस कपिंग 10। अब ये देखें, पेलर ऑप्टिक एट्रोफी में और कपिंग में दोनों में होगा, लेकिन कपिंग जो है स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर एंड द पेलर फॉलोज कपिंग, जबकि जो न्यूरोलॉजिकल पेलर है इट प्रीसीड्स कपिंग। अल्टीमेटली कपिंग उसमें भी हो जाएगी, क्योंकि नर्व फाइबर लेयर की डेथ होगी जब गैंग्लियन सेल्स की, एक्सॉन्स की, तो अल्टीमेटली तो डिस्क खाली हो जाएगी, लेकिन उसमें पेलर पहले होगा, जबकि ग्लाकोमा में जनरली कपिंग पहले होगी और रिम आखिरी दम तक पिंक रहेगा। जी, CRVO के साथ कौन सा नंबर मैच कर रहा है? अब्दुल्ला? हाँ, 16। अब अब्दुल्ला को ही बोलने दें। और रेटिना बी जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, एक ही बोलना है। 14 लग रहा है। क्यों? उसमें पेल वैक्सी डिस्क है, बोन स्पिक्यूल्स हैं, अटेनुएटेड वेसल्स हैं, जो कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का फीचर है सारे। 14 ही है। मायोपिक डिजेनरेशन के साथ कौन सा नंबर मैच कर रहा है? जस्ट थिंक, हैव अ लुक, क्या होता है मायोपिक डिजेनरेशन में? कोरियो रेटिनल डिजेनरेशन होती है बेटा, जिसकी वजह से स्क्लेरा नजर आने लगता है और रेटिना थिन आउट हो जाता है। जी डॉक्टर जवाद, विच वन? 17। उसमें आप देख सकते हैं कि सारा रेटिना थिन आउट हो गया, स्क्लेरल शो हो रहा है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ही रह गया, 15। उसमें डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स हैं, लेजर मार्क्स नजर आ रहे हैं, मैकुलर एडीमा नजर आ रहा है। कौन सा टेस्ट हो रहा है इस पिक्चर में? डिजिटल टोनोमेट्री, जो कि इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, जिसने बता दिया उसको 100 रुपया इनाम। डिजिटल टोनोमेट्री इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ केड़ा ला? नहीं, ये तो ऐसे ही बताना है। इनाम की रकम बढ़ाकर 500 की जाती है। मान अगर तुमने बता दिया तो 1000 रुपया। डिजिटल टोनोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? कैसे करते हैं? वो तो कर ही रहे हैं। ऐसा टेस्ट कोई मेडिसिन में भी है? इसी तरह करते हैं क्या? वही प्रिंसिपल है इसका, लेकिन अब इनाम की रकम सिर्फ 50 रुपए। ये इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लक्चुएशन टेस्ट। एक स्टेबलाइजिंग फिंगर होती है और एक फील करती है, ऑलवेज रिमेंबर।
अगर आपने एग्जाम मिरर के सामने दोनों फिंगर्स यूं यूं की तो इट्स रॉन्ग। एक स्टेबलाइजिंग फिंगर होगी, एक फीलिंग होगी, एक से फील करना। कोई भी कर सकते हैं आप। आमतौर पर जो डोमिनेंट हैंड है दैट विल फील, और जो स्लेव हैंड है वो स्टेबलाइज करेगा। कौन सा टेस्ट हो रहा है? टेस्ट बीइंग परफॉर्म्ड इज यूज्ड टू मेजर, क्या नाम है टेस्ट का? स्कोपी। अब 100 रुपए का फिर इनाम मिल सकता है। व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ गोनियोस्कोपी? तो आपने सबने बोल दिया, तो अब मैं किसको दूं? So the test being performed is known as, अब अब्दुल्ला बताओ आप। शाबाश। What's the principle of that? ये प्रिंसिपल है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें मटेरियल सामान लिखते थे हम उर्दू में, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें डिफरेंट हैं। व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ एफएफए? नाम क्या है इस टेस्ट का? एंजियोग्राफी। इसके नाम में छुपा हुआ प्रिंसिपल फ्लोरिसेंस। क्या है फ्लोरिसेंस? If a substance absorbs one wavelength and emits another wavelength, it's known as a fluorescent substance, and this phenomenon is known as fluorescence. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लैंग्वेज देखेंगे हम ऑप्टिक्स की क्या है, वर्जन्स क्या चीज है, व्हाट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वेरी बेसिक थिंग्स। लेंसेज, मिरर्स, प्रिज्म्स, फाइबर ऑप्टिक्स कैसे काम करते हैं, और वही बात कि फोकल लेंथ और फोकल पावर में क्या फर्क है। अब कन्वेंशनली हमने लाइट को समझने के लिए लाइनें बना दी हैं तीर के निशानों के साथ, तो इट वाज अ ग्रेट थिंग विच आवर एंसेस्टर्स डिड, वरना अब लाइट तो नजर नहीं आती, कैसे समझें उसको। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ऑन द पेपर। वर्जेंस क्या चीज है? जब भी कोई किसी सोर्स ऑफ लाइट से रोशनी निकलेगी तो उसकी जो लाइट रेज हैं या पैरेलल होंगी, या डाइवर्जेंट होंगी, या कन्वर्जेंट होंगी, या इरेगुलर होंगी। लेकिन इरेगुलर भी तभी होंगी जब एक बैंड कन्वर्जिंग है, एक डाइवर्जिंग है, एक पैरेलल है, तो इरेगुलर है। लेकिन है तो तीनों ही किस्म की ना। तो जब जो दोनों लाइट रेज का आपस में रिलेशनशिप है, दैट इज वर्जेंस। अगर वो पैरेलल हो, द वर्जेंस इज 0. If the light rays are parallel, their divergence is 0. And if they are diverging from each other, the divergence is minus. And if they are converging to each other, the divergence is plus. तो असल में वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है जो आप रेटिनोस्कोपी में यूज करेंगे लेटर ऑन। ऑब्जेक्ट को हम ओ से जाहिर करते हैं और इमेज को आई से जाहिर करते हैं, और ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा कॉनफोकल होते हैं। क्या मतलब है इसका?
तुक्का भी मार सकते हैं, अपनी गल है। तो फोकस है क्या ना, काम ऑब्जेक्ट को उठा के, इस ऑब्जेक्ट को उठा के इमेज की जगह पे रख दें दूसरा उधर चला जाएगा। तो उसका इमेज ओ की जगह चला जाएगा। इसको कहते हैं दे आर ऑलवेज कॉनफोकल, कि दोनों की आप जगह बदल सकते हैं आपस में। अगर आई पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज वहीं बनेगा जहां इस वक्त ओ है। लेटरल रिवर्सल ऑफ इमेज, ये प्लेन मिरर में होता है कि आप जब दायां हाथ अपने शीशे को देखते हुए उससे सलाम करें तो आपके इमेज का भी दायां ही आएगा आगे से, यानी आपका राइट उस वक्त लेफ्ट पे जा चुका है। दिस इज नोन एज लेटरल रिवर्सल ऑफ द इमेज, राइट लेफ्ट हॉरिजॉन्टली इमेज चेंज हो गया। तो दिस हैपेंस इन प्लेन मिरर, और इसी वजह से आपको उसमें लफ्ज भी उल्टे नजर आते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिखाया हुआ। रियल और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है? रियल को उर्दू में क्या कहते हैं? हकीकी। और वर्चुअल को मजाजी। तो शायरी में भी हकीकत और मजाज बहुत यूज होता है। कुछ शायर को जब वो फंसता है तो कहता है वो से मुराद तो हकीकी था, और जब जरा लाइट मूड में होता है तो वो से वो ही मुराद होता है। So real images are formed by mirrors and lenses when light rays actually converge and pass through the image. जब हकीकत में वहां इमेज बन रहा है तो वो रियल इमेज है, और जब वहां इमेज नजर तो आ रहा है लेकिन वो बन कहीं और रहा है, वहां नहीं बन रहा, तो इट इज virtual image. So a real image can be projected onto a piece of paper or a screen. So a photographic film was placed here, a photo can be created. आवाज आनी अच्छा चलो ठीक है। तो the image which can be taken on screen is real image, and which cannot be taken on screen is virtual image. इंटरफेस क्या चीज है? whenever there are two media, तो उनके दरमियान जो एक मीडिया जहां खत्म हो रहा है और दूसरा जहां से शुरू हो रहा है, दैट्स नोन एज इंटरफेस। तो वहीं पे रिफ्रैक्शन वगैरह होगी। जैसे आप देख रहे हैं ये पेंसिल का इमेज पानी में कैसे चेंज हो रहा है। फोकल लेंथ एंड डायऑप्ट्रिक पावर। यार ये आवाज डिस्टर्ब कर रही है। बंद कर दो। अगर हम स्पीकर बंद कर दें तो ये आवाज कैसे बनेगी, वॉल्यूम बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस है वो लाइन जो लेंस के सेंटर से गुजरती है, या वो रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे गुजरेगी उस पे उस लेंस की डायऑप्ट्रिक पावर का कोई असर नहीं होगा, चाहे वो लेंस माइनस हो चाहे वो प्लस हो। और फोकल लेंथ है उसका जो लेंस का सेंटर है सी, उससे लेकर उसके फोकल पॉइंट तक का फासला इज नोन एज फोकल लेंथ, एंड 2f इज डबल द फोकल लेंथ। ये रेडियस के बराबर होती है।
जी रेडियस के बराबर में। उससे रिलेशन है ना इसका। और d is equal to 1 over f, where 1 is equal to मीटर। तो 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर है? 100। तो आई में चूंकि हमने मीटर्स में तो कुछ नापना नहीं है, so we always put 100 over it and measure everything in diopters and centimeters to make it simple, ताकि हमें वो कन्वर्जन बार बार ना करनी पड़े। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 10 डायोप्टर का लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? उधर स्क्रीन पे देखो ना, फार्मूला दिया हुआ है, 10 हो। सो ऑलवेज रिमेंबर इट। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक लेंस 25 सेंटीमीटर का है, उसकी फोकल लेंथ है, तो उसकी पावर कितनी होगी? 4 डायोप्टर्स। तो अगर मैं कहूँ कि एक लेंस 50 डायोप्टर का है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 2। तो 90 डायोप्टर की कितनी होगी? 1.1। तो जितनी उसकी फोकल लेंथ है उतनी दूर रखेंगे तो नजर आएगा अच्छा इमेज। That's why you place a 90D lens around about 1 centimeter from the eye and 20 diopter lens about 5 centimeters away from the eye. तो ये सारी साइंस उसके पीछे, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके पीछे चल रही होती है। तो 20 डायोप्टर लेंस जो आमतौर पर आप इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में यूज करते हैं, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह ऑप्थेल्मोस्कोपी में एक 14 डायोप्टर लेंस यूज होता है, उसकी कितनी होगी? 7 point something. Is it clear now? तो मिरर्स में, लेंसेज में उसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा और फोकल लेंथ भी होगी। वर्टिकल एक्सिस वो है जो लेंस के सेंटर में से गुजर रहा है, और हम सिंपलीफाई जब करते हैं ऑप्टिकल डायग्राम को, तो हम उसका वर्टिकल एक्सिस ही कई दफा ड्रॉ कर लेते हैं। आपने एल्किंगटन में स्कीमेटिक आई पढ़ी होगी, तो दिस इज व्हाट स्कीमेटिक आई डज, कि उसने लेंसेज को स्ट्रेट लाइंस बना के प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए हैं और उस पे आई को समझने की कोशिश की है। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं 2F भी। अभी आपने वो लेटरली वर्स इमेज पढ़ा था, इरेक्ट वर्सेस इन्वर्टेड इमेज। जो उल्टा नजर आ रहा है वो इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन। लेटरली रिवर्स्ड राइट लेफ्ट में हॉरिजॉन्टली होगा, और ये वर्टिकली इन्वर्ट होगा जो इन्वर्टेड इमेज है। तो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में जो इमेज नजर आता है वो उसका प्लेन मिरर से क्या फर्क होता है? वो अपसाइड डाउन भी होता है और लेटरली रिवर्स भी होता है। डिस्क अगर आपकी आई में, राइट आई की राइट पे पड़ी है, तो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में लेफ्ट पे नजर आएगी बिकॉज ऑफ द लेटरल रिवर्सल। और जो सुपीरियर लियन पड़ा है वो इंफीरियरली नजर आएगा बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड इन्वर्जन। तो उसमें रिवर्स भी है और इन्वर्टेड भी है। ये सिंप्लीफिकेशन ही की है। देखिए इसमें इंटरफेसेस मल्टीपल हैं। जब लाइट रे आई है तो वो एयर लेंथ इंटरफेस पे बेंड करेगी, तो एक इंटरफेस ये है और एक ही ये है आगे, जहां से वो डेंसर मीडिया से लाइटर में जाएगी। तो 2 दफा उसके होनी है रिफ्रैक्शन किसी भी रे की। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसके प्रिंसिपल एक्सिस से टकराते हैं और उसको एक ही दफा कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया आपने लेंस को, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो ये आप बड़ी कसरत से यूज करते हैं आई के ऑप्टिक्स में, फिजिक्स के ऑप्टिक्स में। आप
अप्रोक्सीमेशन का प्रिंसिपल यूज करते हैं, बजाय उसको 2 दफा टर्न करने के उसकी सारी की सारी रिफ्रैक्शन को प्रिंसिपल एक्सिस से एक दफा ही बेंड कर लेते हैं। समझ आ गई? आप ये देखो लेफ्ट डायग्राम में सर बहुत मेरे को करते हैं ना तो बहुत शो ये दो 2 दफा बेंड हो रही है ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर में बनाया और दोनों सरफेस पे होने वाली रिफ्लेक्शन को एक प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कर दिया है, बाकी चीजें वही हैं। डिजाइनिंग में कोई चेंज नहीं की, पेपर पे ड्रॉ करने के लिए schematic है, that's why it is approximation, just to make the understanding easy, drawing easy। ऐसा नहीं हो रहा प्रैक्टिकली, तो उसमें 2 दफा रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन नेट रिजल्ट को समझने के लिए हमने स्कीमेटिकली ऐसे कर लिया है। इतना ही रहना है आज। We end up here। अभी तक कोई है क्वेश्चन तो करें, तो इंशाल्लाह अब इसी को लेके आगे चलेंगे। Hopefully it will be helpful। So thank you for your attention। कैसा रहा? अच्छा है मेरा कहना। हाँ, इसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंटल करेंगे तो आसानी ज्यादा होगी।